बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और वीडियो में आप सभी लोगों के मध्य उपस्थित। और दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ यहाँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रायबरेली, यहाँ पे मौजूद हूँ, इसके सुंदर से प्रांगण में मौजूद हूँ। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भारत के सर्वोच्च तथा सर्वोत्तम इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है। और आज इंटरव्यू होने वाला है मेरे इस चैनल में यहाँ के डायरेक्टर, अमेरिकन इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्रीमान जमाल सर का। तो आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप जमाल सर के बारे में तथा इस इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे। तो मेरा आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं श्रीमान जमाल सर के पास, जिनके जीवन परिचय के बारे में हम आज यहाँ। सर, वेयर इज योर नेटिव प्लेस? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। Sir, basically, I belong to district Bijnor. It comes in UP. Okay, sir. And then tell us something about your family background, sir. Sir, my family background, I would like to mention my parents first. My father name is late Dr. Mohsin Abbas Naqvi, and my mom is Masroor Zehra. And I have one brother, Mr. Kamal Haider Naqvi. He is in France nowadays. And I have two sisters. They have got married. I am also married, and I have three daughters. Okay, sir. Sir, what is your qualification? Sir, I am postgraduate with English, and I did my schooling from Saharanpur actually. From my granny's home. My school name was MGM Inter College, and my Nana and my Nani brought me up there. Okay, sir. So, during your studies, who were your close friends with whom you shared your every secrets? In my college studies, the long time has gone actually, and so many friends were there. Zishan was there, Vikas Singh was there, and Shailendra were there, and Ajay was there. So many friends are there. Actually, now after settle down in Raebareli, I have left so many things. Yeah, they are still in my touch. They are with me on my Facebook, on my WhatsApp account. We keep talking also, but they are well settled. One of my best friends, Shalender, he is in America nowadays. He is a engineer. Okay, sir. When did you start teaching, sir? Actually, when I was doing my graduation, so I started giving tuitions to my neighbors' childrens, to my village childrens, and I really felt that time that teaching is the best option for me. I am born, actually this profession is not by chance, actually it is by my choice. As I have mentioned that my father was a doctor, so he wanted me to become a doctor too. And after passing 12th, he was sending me to Russia for MBBS course, but I denied. I said that, father, let me do what I want to do. So I started teaching after just passing inter. I start giving English tuitions to my neighbors' childrens, and after completing my graduation, I start teaching English. I started my very first center of American Institute in Chandpur in 2007. Okay, sir. I would like to ask you another question. When did you pass your graduation, sir? I passed my graduation in 2003. Okay, sir. And when did you come to Raibli, sir? Actually, it's a the very interesting story. When I started my center in Chandpur, so there I had a student, Mr. Ashok Prajapati.
I would like to mention his name because he has been a very laborious personality. And when he joined American, so I offered him a job at American Center in Chandpur. So he started joining American as a faculty, and I trained him, and he really did very hard work with American for 2 years in Chandpur. So later, when I planned to open a second center, and I was planning to open my second center in Nurpur, it's a small city nearby Tehsil Chandpur district of Bijnor. So Ashok sir rejected the proposal, and he said that, sir, we must open a center in a big city. It could be anywhere around the India. It could be anywhere, no issue. I'll go with you, and I would work hard with you. He told me. So I searched the center, then I found that Raebareli is a great place. Raebareli has a great talent. Raebareli's students are really very laborious. They are very respected. They are very good in education also. They are very curious to learn English also. So I visited Raebareli in 2009, and I select the place, and I started my center here. Okay, sir. Although you have taught uh, many students suppose you as the best teacher for them. But who is your idol teacher? I would like to ask this most important question to you, sir. Actually, these kind of questions I think should not be asked. That who is your ideal teacher? A teacher shouldn't be compared. If I talk about my since my basic education up to my higher education, so how could I compare my basic teacher Nutam ma'am? Nutan ma'am was the first teacher of LKG when I did my schooling from district Saharanpur. So she still I haven't forget her. And Dharmendra sir was there, Usman sir were there, Ilyas sir were there, and Brain sir was there, Shashi Khan sir were there. And when I was doing my BSc, so Mr. Avasthi sir were there, and Chauhan sir were there, the great faculty of botany of district Bijnor. So when I was an inter, so Zafar sir, Gupta sir, and Shakir sir, the teacher of physics, he is a great personality. He has been teaching there. So I cannot, I shouldn't compare the teachers. All the teachers have the great place in my heart still. If I talk about the English speaking, so yes, I have been trained by Mukesh Kumar sir. He's a great personality, and I must say that I have never ever seen a person like him. He's very unique, he's very different, and it's a great. Thank you very much. Okay, sir. When you came here, Rabli, so what difference did you find between Rabli and Biznor, sir? Between Rai Bareli and between Bijnor, if I compare the students, the pioneer, if I compare the students for learning, so Rai Bareli has a great stuff for education. Rai Bareli students are they are very unique. They are very different comparatively Bijnor. They are very hardworking. They are very curious to learn new things even, and this is why Raebareli always gives a great result in competition classes. So many students have got selected in Air Force, in NDA. They were taught by American. They were taught English by American especially. So comparison between Bijnor and Raebareli is that the students are very loyal, they are very respected, and they are very hardworking, very curious. Okay, sir. As everyone knows that you are the director of American English Speaking Institute, so tell us something about American Institute, sir. Sir, American, when I was doing my graduation from District Bijnor, so I saw the advertisement of American, and I thought, because since my childhood I was very crazy for learning English. I did my schooling from UP board,
But when I saw the poster and the banners and the advertisement of American in District Bijnor, so I rushed towards American Center, and I visited there, and I inquired about the course, about all the things. Then I came to know the head office of American Institute is in Meerut. So I personally visited Meerut for 3 months, and I joined Mukesh sir classes. And I have been trained under the direction of Mukesh sir and the founder of American, Mr. Vikram Prakash Lamba sir. Okay, sir. And what facilities do American Institute provide, sir? American Institute in the field of spoken language, there is no comparison between American and any other institutes. American, first of all, has got more than 600 branches in 11 states, and American provides a practice book too, and American provides India card also. The benefit of getting India card is that students can join American English Speaking Institute anywhere without paying a single penny. And the main facility of American is its method. The method is very unique. The method is very different. The method is very natural. 100% practical classes are being provided at American Center. It is said that what we learn to do, we learn by doing. So, if somebody wants to improve their English, so they must follow the rules. They must follow the natural method of learning any language. I always suggest my all students that how you have learned Hindi, the same way you can learn English also. Learning English at American is as easy as learning ABC. Thank you. Okay, sir. The students who are zero in English speaking, what is your suggestion for them? Sir, I would like to speak Hindi here because your question is that if somebody is zero in English, so what they should do? If somebody is zero, so they cannot get my answer in English too. So I would like to take your permission to reply this question in Hindi. Could I speak Hindi? जी, बिल्कुल सर, आप बिल्कुल हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रश्न ही ऐसा है। मैंने प्रश्न पूछा था कि वे विद्यार्थी जो अंग्रेजी में ज़ीरो हैं और जिनको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, उनके मन में बहुत सारा डर रहता है कि कैसे मैं क्या कर पाऊँगा, कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मेरा प्रश्न ये था कि यदि विद्यार्थी ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए आपकी क्या सलाह है? तो यदि विद्यार्थी ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहता है और ये यदि आप इंग्लिश में बताएँगे तो फिर वो विद्यार्थी समझ नहीं पाएगा। इसलिए मेरा आपसे ये सवाल हिंदी में ही रहा कि आप क्या कहना चाहेंगे उन विद्यार्थियों के बारे में जो ज़ीरो है और शुरुआत करना चाहते हैं सर? थैंक यू वेरी मच सर। ये जवाब से ज़्यादा एक मैसेज के रूप में मैं चाहूँगा जो हमारे व्यूवर्स इसको सुने। सबसे पहले तो सर ने जैसा कि सवाल किया कि जो बच्चे हिंदी इंग्लिश में ज़ीरो हैं, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें, वो क्या इंग्लिश सीख सकते हैं? सो इफ़ आई अगर मैं अमेरिकन की जर्नी के बारे में बताऊं तो अमेरिकन ने कई ऐसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाई है जो वाकई में इंग्लिश में ना लिखना आता था, ना पढ़ना आता था, और उन्होंने अमेरिकन ज्वाइन करने के बाद इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया है। जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने अपनी ब्रांच, पहली अमेरिकन की ब्रांच चांदपुर तहसील डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में स्टार्ट की थी। तो 2007 में वहाँ पर एक स्टूडेंट था जमाल सिद्दीकी। जमाल सिद्दीकी दुबई में जॉब करते थे और पिछले 3 सालों से उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने अपने मैनेजमेंट में, अपने एचआर में इस बात की कंप्लेन की कि सर 3 साल मेरे हो गए हैं लेकिन अभी तक मुझे प्रमोशन नहीं मिला है, तो एचआर ने उनको यही जवाब दिया कि आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए और फिर आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो जमाल सिद्दीकी इंग्लिश सीखने के लिए स्पेशली दुबई से अपने वतन चांदपुर आए थे। चांदपुर में आके फिर उन्होंने हमारे पास इंक्वायरी किया, अमेरिकन के बारे में जाना, अमेरिकन के मेथड के बारे में जाना, और मुझे अभी तक ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद है कि अभी तक उन्होंने जब मेरे पास एडमिशन लिया था तो अपने साथ एक फ्रेंड का भी एडमिशन अपने पास पैसों से कराया था।
और उनका फ्रेंड आता था, लिखता उनका फ्रेंड था, और जमाल सिद्दीकी हमेशा हमारे साथ प्रैक्टिकल मेथड में रहते थे, हमेशा हमारे साथ प्रैक्टिस किया करते थे। और उन्होंने बहुत जम के मेहनत किया और उन्होंने इंग्लिश इम्प्रूव किया। उसके बाद वो दुबई गए और अभी भी मेरे वो टच में हैं, और वहाँ पर जाकर उनको प्रमोशन मिला। इसके अलावा एक सेकंड एग्जाम्पल है जानसठ का, जो कि मेरठ का पास आता है जानसठ। वहाँ पर एक फल विक्रेता था जो कि फल बेचा करता था, केला अमरूद बेचा करता था। जानसठ में भी अमेरिकन की ब्रांच है, उसके डायरेक्टर मिस्टर ध्रुव सर हैं। ही इज़ माय वेरी गुड फ्रेंड। तो जो फल बेचा करता था वो बहुत शैतान टाइप का लड़का था। और जब उसने अमेरिकन का पोस्टर देखा तो उसने सोचा कि आज इस सेंटर पे विजिट किया जाए और सर से थोड़ा सा हंसी मजाक किया जाए, टाइम पास किया जाए। जब वो लड़का अमेरिकन के सेंटर पे पहुंचा और जाके ध्रुव सर से बात की, तो सर से बात करने के बाद कहीं ना कहीं उसको लगा कि जो सर ने बातें मुझे बताई हैं, बातें तो ये सही हैं। अगर मैं भी इन चीज़ों को फॉलो करूंगा तो पॉसिबल है कि शायद मैं भी इंग्लिश बोलना सीख जाऊं। फिर उसके बाद उस बच्चे ने भी अमेरिकन ज्वाइन किया, और वो भी आज जानसठ में फल बेचता है, लेकिन वो इंग्लिश बोल सकता है। और उसकी इंग्लिश से लोग इतने प्रभावित हैं सब। इवन जो वहाँ पर सेंट पीटर या सेंट मैरी स्कूल है, वो भी उस बच्चे का आइडियल मानते हैं, उस बच्चों को एग्जाम्पल्स देते हैं अपने स्कूल में कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। एक फल बेचने वाला जो कि सिर्फ यूपी बोर्ड से हाई स्कूल पास किए हुए है, वो धारा पर वो इंग्लिश बोल सकता है, तो आप क्यों नहीं। और वहाँ पर स्पेशल बच्चों को मोटिवेट किया जाता है अमेरिकन ज्वाइन करने के लिए। दो बात। तीसरी बात ये है कि जैसा कि आप सभी और हम सभी जानते हैं कि 10 में से 9 जॉब्स में आज के समय में हमें इंग्लिश चाहिए। बहुत तेजी के साथ हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। कोरोना पीरियड में सब कुछ बंद था, एजुकेशन भी ऑनलाइन थी, और ऑनलाइन पे जिस जिस बच्चे ने भी स्टडी किया है तो उसकी नज़रों में इंग्लिश का महत्व और बढ़ा है। तो अब जॉब की बात, जैसा कि मैंने कहा, आप एयरफोर्स की बात करें, आप एनडीए की बात करें, आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, या आप मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बच्चे पॉलिटेक्निक से कोर्सेज करते हैं, आप बीटेक करते हैं, आप बीसीए करते हैं, आप एमबीए करते हैं। सो ऑल दीज द प्रोफेशनल कोर्सेज में भी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के बगैर आज के समय में गुजारा हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा सर यही सभी बच्चों को कहना है कि आप अपनी इंग्लिश पर फोकस करें और इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करें। अगर आप हाई स्कूल में हैं, अगर आप 9th क्लास में हैं, अगर आप 11th क्लास में हैं, अगर आप इंटर पास आउट हैं, तो इंटर पास आउट करने के बाद जिस एटमॉस्फेयर में आप आएंगे उसमें इंग्लिश की आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए स्पेशल स्कीम्स चलाती रहती है। मैं उसी बिहाफ पर एक और अनाउंसमेंट सर के माध्यम से ये करना चाहूँगा कि अगर कोई हमारी बेटी फाइनेंशियली वीक है, या उसको इंग्लिश सीखने का शौक है और वो अमेरिकन पर आकर इंग्लिश सीखना चाहती है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, और अपने हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चियां जो पढ़ने का शौक रखती हैं, जो बच्चियां इंग्लिश सीखने का शौक रखती हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से इस तरह के कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, तो मैं बिल्कुल आप हमारे पास आइए, और हमारे पास आने के बाद आप हमें अपनी परेशानियां बताइए, और आपकी जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है पैसों को लेकर, मैं आपकी रिक्वेस्ट हेड ऑफिस भेजूंगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया जाऊँ करूंगा कि आपका जो कोर्स है वो कम से कम पैसों में कराया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। जी, बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको मैं शुभकामनाएँ भी देना चाहूँगा। भगवान करे, ईश्वर करे आप इसी तरह और जो है प्रगति करते रहें और जैसा कि अभी आपने कहा कि जिन कन्याओं को, जिन बालिकाओं को, जिन स्टूडेंट्स को, कन्या स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को जो कमज़ोर हैं फाइनेंशियली, उनको अगर जॉइन करना है तो वे आ सकते हैं, अपनी समस्या बताकर जॉइन कर सकते हैं। ये वाक़ई में एक सराहनीय
पहल है, कदम है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ, देता हूँ। और इसी के साथ मित्रों, मैं आज का अपना यह इंटरव्यू समाप्त करना चाहूँगा और जाने से पहले मैं निष्कर्ष रूप में सर से अंतिम यही कहना चाहूँगा, यही पूछना चाहूँगा कि समाज के बारे में आज आप इतना जीवन आपका बीत गया, इतने के बारे में तथा टोटली निष्कर्ष रूप में अमेरिकन स्कूल, विद्यार्थी और मित्रों तथा आस-पास के परिवेश और भारत की स्थिति तथा विश्व पटल की स्थिति के बारे में यदि आपको सर कुछ कहना है, तो वो भी मैं आपके मुखार बिंदुओं से जानना चाहूँगा। सर देखिए, मैं भी अब अपनी बात को समेटते हुए लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन जो हमारे स्कूल्स में, ग्रेजुएशन में हम जो भी एजुकेशन लेते हैं वो ज़िंदगी भर हमारे साथ हमारे काम आती है। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपकी जॉब तक या आपके 50% लाइफ तक आपके साथ रहती है। लेकिन अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है कि जो लाइफ टाइम आपके काम आएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको भाषा की ज़रूरत होती है। और सभी लोग जानते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि दुनिया के अंदर इंग्लिश का कितना महत्व है। आजकल सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़, सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ जो भी इंटरव्यू लेती हैं वो इंग्लिश में लेती हैं। बहुत तेज़ी के साथ हम लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड्स में पहुंच गए हैं जहां पर हमें इंग्लिश के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। दूसरी बात, जैसा कि सर ने कहा कि लोगों के बारे में या दुनिया के बारे में या समाज के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मोहब्बत, प्यार, इत्तेफाक, यूनिटी से बड़ी ताकत, बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। हमें एजुकेशन का दामन पकड़ना पड़ेगा। हमें अपने आने वाली जनरेशन को एजुकेशन के लिए तैयार करना पड़ेगा, उनके लिए अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही साथ मैं पेरेंट्स को भी ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि जब आपके बच्चे कहीं पर एडमिशन लेते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उस इंस्टीट्यूट पर एक बार विज़िट करें। जो फैकल्टी इंस्टीट्यूट पर पढ़ा रही है वो कहाँ से है, वो कौन है, उसका ट्रेनिंग कहाँ से हुआ है, उनके इंस्टीट्यूट का संबंध कहाँ से है, टीचर को पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है। ये सारे माध्यम भी एक पेरेंट्स को खासकर ज़िम्मेदारी बनती है, उनको लेना चाहिए। चूँकि एक कामयाब बच्चे के पीछे अगर देखा जाए तो सबसे पहला रोल उनके माता-पिता का और उसके बाद सोसाइटी का और गुरु का, इन तीनों का महत्व बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर बच्चा 1% भी गलत सोसाइटी में, गलत माहौल में चला जाता है, तो उसका फ्यूचर डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जहाँ पर आपने ये ज़िम्मेदारी उठाई है कि बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप अच्छे इंस्टीट्यूट पर उनको भेज रहे हैं, तो मैं ये भी चाहूँगा कि उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि एक बार बच्चे के साथ आकर इंस्टीट्यूट को ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू। जी, बिल्कुल धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों, मैं आज का अपना यह इंटरव्यू समाप्त करना चाहूँगा और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।